Hello friends, hope you all are doing well. Welcome to my YouTube channel Accounting Knowledge. In this video lecture, we are going to learn about Introduction of Partnership Final Account of 12th standard. So in my previous lecture, we already had learned some theory part of Introduction of Partnership Final Account. Some more theory part is pending that we are going to learn in this lecture. Okay student, so in this lecture in detail we are going to learn how many accounts we have to prepare while preparing the partnership final account. What is adjustment, how many types of adjustment, and what are the effect of adjustment. Okay, so before moving further, let's tell you that if you had not seen my previous lecture, I will attach the YouTube link in my description. Please first watch my previous lecture, then only watch this video. Okay, so let's move forward. Here you can see, while preparing the partnership final account, we have to prepare total 4 accounts. First one is trading and profit and loss account. Second one is a partners capital account. Third one is a balance sheet. Okay, so in my previous lecture, I already had explained that how to prepare the partners capital account, how many types of partners capital account, okay, what are the items should be included in partners capital account. So in this lecture, I will not going to explain about the partners capital account. Today we are going to learn in detail what is trading account, what is profit and loss, what is balance sheet, okay, what are the items come in this all, and after that what is adjustment. Okay, let's move forward. Here you can see I had given the performa, or you can say the format of trading account. This trading profit and loss balance sheet you already had learned in the 11th standard in the chapter final account of sole proprietorship. So in this we are not going to learn this all thing in a detail, because this all thing you already have learned. Okay, so what is trading account? Trading account is a such type of account where what we have to do, we have to record direct expenses or expenses which is related to factory or manufacturing. Okay, here you can see, that is, in the trading account we have to record opening stock purchase, then we have to minus purchase return from the purchase. Okay, then there are lot of item, that is carriage, inward freight, and this all thing we have to record in the debit side of trading account. Okay, all item already you have learned in the 11th standard. Okay, this all trading item you already had learned in the 11th standard in detail, so there is no need to explain again. In the credit side we are recording sales, then we have to deduct sales return from the sales. Okay, this all item is given in a trial balance that you already know. Then goods destroyed, lost by fire, then goods lost by theft, then goods distributed as free sample. Okay, so this all item we have to record in a credit side. In credit side we are recording income, in debit side we are recording expenses, that you already know. But which type of expenses we have to record? We have to record only direct expenses or the expenses which is related to manufacturing or trading. Clear? Here you have to be clear in one thing, that if in the trial balance is given, you can see below the note is given, if in the trial balance is given wages and salary, means if only wages is given, then wages is recorded in trading account, or if only salary is given, so salary is recorded in the profit and loss account. But students, when both the thing is given in a combined, like जब क्या दिया रहेगा, wages and salary, means both item will be given. If first item is given as a wages, अगर पहले wages and salary दिया हुआ रहेगा, तो wages and salary हमको कहाँ पे डालना रहता है? ट्रेडिंग अकाउंट में. लेकिन अगर
सैलरी एंड वेजेस दिया रहेगा तो हमको उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में डालना रहता है. तो हियर यू कैन सी दैट इज ओनली रिटर्न व्हेन द आइटम वेजेस एंड सैलरी इज गिवन इन विच वेजेस आर appearing first, it should be transferred to trading account debit side. But when the item is salary and wages is given in which salary appear first, it should be transferred to profit and loss account debit side. Okay students, so what you have to do, you have to behat all the item. Okay, what you have to do, तुमको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट के सारे आइटम्स बहैट करना है. तुमने ऑलरेडी इसको बहैट किया हुआ है इन 11th स्टैंडर्ड, लेकिन once again you have to behat all the item, or you have to keep remember one thing, that the factory expenses and the manufacturing expenses is recorded in the trading account. Clear? Let's move forward. Here you can see the performer of profit and loss account is given. Again, you already know what is profit and loss, what are the item includes under the profit and loss account. So here you can see in the profit and loss, what we are recording? We are recording all expenses which is related to office and administrative or selling, or you can say all indirect expenses. Okay, ऐसा expense जो business से indirectly connected होता है. Okay, that all expenses we have to record in profit and loss account. Okay, again income which is indirectly connected from our business, that all indirect income we have to record in the profit and loss account. Clear what I said? So here all the item is given. Again, that all item, what you have to do, you have to learn. Okay, you have to learn, you have to read once, twice, thrice. Okay, जब आप इसको बार बार रीड करोगे ये आइटम को, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि ये सारे आइटम कहाँ पे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं. क्लियर व्हाट आई सेड? तो दैट इज द format and performer of profit and loss account. Okay, let's move forward. Here you can see the performer of balance sheet. Okay, again the balance sheet क्या होता है यहाँ पे, फर्स्ट liability and the second one is a assets. Clear? liability में सबसे फर्स्ट आइटम होता है कैपिटल अकाउंट. यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट इज दैट कैपिटल अकाउंट का जो अमाउंट होता है वो अमाउंट हमको कहाँ से मिलता है, दैट अमाउंट वी आर गेटिंग फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है. जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं, ओके, जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं, जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है, दैट बैलेंस वी आर रिकॉर्डिंग इन अ बैलेंस शीट. सो हियर यू कैन सी इफ योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज शोइंग क्रेडिट बैलेंस, if your partner's capital account is showing credit balance, that we have to record in the liability side. But if your partner's capital account is showing debit balance, that we have to record in the asset sides. Clear what I said? So here all item is given. liability sides में जितने भी liabilities के item होते हैं वो हम लोग record करते हैं, like reserve and surplus, loan, creditors, advance, okay, provision for taxation. This all item we are recording in a liability side. assets में हम लोग क्या record करते हैं, all tangible assets, intangible assets, fixed assets. okay, this all item we are recording in a asset side. and इसके बारे में भी आप लोगों ने क्या किया था, you already had learned in the 11th standard. Clear what I said? So that is the performer of balance sheet. Let's move forward. Okay, what you have to do, you have to learn all the item. Again and again I am saying what you have to do, you have to learn all the item of trading account, profit and loss account and balance sheet. अभी क्या होता है, इतने आइटम्स हम लोग बहट नहीं कर पाते, तो तुमको क्या करना है, ये सारे आइटम को ट्वाइस एंड थ्राइस क्या करना है, रीड करना है. वंस यू विल रीड दैट ऑल आइटम, ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो सारे आइटम आपके माइंड में हो जाता है कि वो ट्रेडिंग में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, बैलेंस शीट में जाता है. क्लियर? Let's move forward in the next slides now, which is very important, that is the adjustment. Okay, now we have to learn about the adjustment. Okay, before learning about the adjustment, first we should know what is adjustment, how many types of adjustment. Okay, here you can see adjustment. What is adjustment? Adjustment is a transaction occurring after preparing trial balance that must be considered while preparing final account. क्या होता है इसका मतलब,
एडजस्टमेंट एक ऐसा ट्रांजेक्शन होता है जब हम लोग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं उस समय वो ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं होता है। तो कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? वो ट्रायल बैलेंस के नीचे बिलो साइड में दैट इज़ दिया होता है। ओके, ये ट्रांजेक्शन को हमको क्या करना रहता है? जो ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं होता है उसको हमको रिकॉर्ड करना पड़ता है वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। क्लियर व्हाट आई सेड? ओके, एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट हैव टू इफेक्ट। हर एक ट्रांजेक्शन का कितना इफेक्ट होता है? टू इफेक्ट होता है। दैट इज वन इज डेबिट इफेक्ट एंड अनदर इज क्रेडिट इफेक्ट। ओके, ये भी आपको काफ़ी अच्छी तरीके से पता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज द हिडन एडजस्टमेंट। अभी एक और टाइप का एक तो नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है जो कहाँ पे दिया हुआ रहता है? जो ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया हुआ रहता है। तो दैट इज़ अ नॉर्मल एडजस्टमेंट जो हमको क्या करना रहता है? उसका पोस्टिंग करना रहता है। और हर एक एडजस्टमेंट का क्या होता है? दो इफेक्ट होता है। क्लियर? लेकिन एक और एडजस्टमेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड हिडन एडजस्टमेंट। ये हिडन एडजस्टमेंट कहाँ पे रहता है? ये हिडन एडजस्टमेंट आपको ट्रायल बैलेंस में ही दिया हुआ रहता है, लेकिन ये एडजस्टमेंट आपको हिडन, वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ हिडन? बिकॉज ये छुपा हुआ रहता है। यू हैव टू फाइंड आउट, okay, that adjustment is not directly seen by the student. What you have to do, you have to find out, you have to recognize that adjustment कि वो adjustment क्या है? hidden है। तो फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन लोन, तुमको ट्रायल बैलेंस में क्या दिया रहेगा? ओनली लोन दिया रहेगा। ब्रैकेट में क्या दिया रहेगा? परसेंटेज ऑफ लोन दिया रहेगा, लोन कभी लिया गया है इतना ही दिया रहेगा। और तुमको क्या करना रहेगा? उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना रहेगा। वो इंटरेस्ट का दो इफेक्ट देना रहेगा। दैट इज़ ओनली कॉल्ड एज हिडन एडजस्टमेंट। अंडरस्टूड? जो ट्रायल बैलेंस के नीचे नहीं दिया हुआ रहता है, फिर कहाँ दिया हुआ रहता है? वो एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस में ही छुपा रहता है जो तुमको फाइंड आउट करना रहता है। क्लियर व्हाट आई सेड? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम लोग क्या करेंगे? वन बाय वन एडजस्टमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। ओके, आपको ऑलरेडी पता है क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट। वन इफेक्ट क्या होता है? उसको हमको कहाँ पे ट्रांसफ़र करना रहता है? बैलेंस शीट के असेट साइड। और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे डालना रहता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। स्टॉक होता है क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक मतलब गुड्स, सारे गुड्स हमको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना रहता है। और स्टॉक करंट असेट्स होता है, तो इसीलिए उसको हमको कहाँ पे करना रहता है? बैलेंस शीट के असेट्स से। अभी आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, क्लोजिंग स्टॉक का दो वैल्यू दिया हुआ रहता है। क्लोजिंग स्टॉक का दो वैल्यू दिया रहता है, वन इज़ मार्केट वैल्यू एंड वन इज़ कॉस्ट वैल्यू। तो दैट यू ऑलरेडी नो विच वैल्यू वी हैव टू कंसीडर। वी हैव टू कंसीडर दोज वैल्यू विच इज़ लेस। ओके, market price or a cost price which is less, that value we have to consider in a closing stock. Okay, second one is a outstanding expenses. आपको पता है outstanding expenses, इसका मतलब क्या होता है? expenses जो हमने पे नहीं किया है, expenses which is unpaid, that is called the outstanding expenses. उसका क्या होता है? दो इफेक्ट, हमने पे नहीं किया है। ओके, फॉर एग्जांपल मुझे रेंट पे करना रहता है 12 महीने का, लेकिन मैंने 10 मंथ का ही पे किया है, 2 महीने का रेंट पे करना बाकी है, तो दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। ओके, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अनपेड एक्सपेंसेस। उसको हमको क्या करना रहता है? उसका फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है? हमको उसको क्या करना रहता है? ऐड करना रहता है एक्सपेंसेस में, उसको ऐड करना रहता है। कहाँ पे ऐड करना रहता है? या तो अगर ट्रेडिंग वेजेस दिया है तो ट्रेडिंग में, सैलरी दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस में। तो पहला इफेक्ट ऐड टू एक्सपेंसेस, और सेकेंड इफेक्ट दैट इज बैलेंस शीट लायबिलिटी। अनपेड है ना, हमने पे नहीं किया है, तो इन फ्यूचर तो हमको उसको पे ही करना है, तो दैट इज़ लायबिलिटी फॉर मी। नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड, थर्ड वन दैट इज़ अ प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? अगेन आपको पता है व्हाट इज़ प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब दैट इज़ एक्सपेंसेस विच इज़ पेड इन एडवांस। ज़्यादा हमने एक्सपेंसेस पे कर दिया। जब कोई एक्सपेंसेस हम ज़्यादा पे कर देते हैं तो उसका क्या करना रहता है हमको? दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू माइनस। फॉर एग्जांपल 12 मंथ का एक्सपेंसेस रेंट पे करना था, मैंने 15 मंथ का पे कर दिया, तो मतलब 3 मंथ का एक्सपेंसेस हमको क्या करना रहेगा? उसको लेस करना रहेगा। ओके, तो फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है? लेस फ्रॉम द एक्सपेंसेस। एंड सेकेंड इफेक्ट ज़्यादा पे कर दिया है तो वो हमारे लिए क्या है? असेट्स है।
और हमारे लिए असेट्स है तो हमको उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, वी हैव टू रिकॉर्ड दैट इज बैलेंस शीट, वी हैव टू रिकॉर्ड बैलेंस शीट असेट साइड. क्लियर व्हाट आई सेड? दैट इज आवर थर्ड एडजस्टमेंट. लेट्स मूव फॉरवर्ड. फोर्थ वन, व्हाट इज फोर्थ वन? इनकम रिसीव इन एडवांस. इनकम रिसीव इन एडवांस, इसको आप लोग क्या बोल सकते हो? प्री रिसीव इनकम. प्री रिसीव इनकम मतलब दैट इज, इसको आप लोग प्रीपेड इनकम भी बोल सकते हो. क्या बोल सकते हो? प्रीपेड इनकम. थर्ड वाले में देखो क्या था? प्रीपेड एक्सपेंसेस था. यहाँ पे क्या है? प्रीपेड इनकम है. अब ये प्रीपेड इनकम का हमको क्या करना रहता है? सेम प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या करते हो आप? डिडक्ट करते हो. लेकिन कहाँ से डिडक्ट करते हो? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड या तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड. लेकिन प्रीपेड इनकम को आप कहाँ से डिडक्ट करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड या तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड. ओके, सो प्रीपेड ऑलवेज डिडक्ट होता है, माइनस होता है, दैट यू ऑलरेडी नो. लेकिन उसका दूसरा इफेक्ट, अभी प्रीपेड एक्सपेंसेस का हम लोग इफेक्ट कहाँ पे करते थे? बैलेंस शीट असेट साइड. लेकिन प्रीपेड इनकम का इफेक्ट हम लोग कहाँ पे करेंगे? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. अपोजिट होता है. तो दैट you have to keep in your mind. Next one is what? Fifth one, income receivable. Now what is income receivable? Means income which is outstanding. Okay, जो हमको मिलना अभी बाकी है. Okay, income जो हमको मिलना बाकी है, तो ऐसा इनकम हमारे लिए क्या होता है? असेट्स होता है. आज नहीं तो कल तो मिलेगा, तो उसको हमको कहाँ पे रिकॉर्ड करना रहता है? बैलेंस शीट के असेट साइड. लेकिन उसका दूसरा इफेक्ट क्या करना रहता है हमको? व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू ऐड टू दैट इनकम. ओके, आउटस्टैंडिंग क्या होता है? हमेशा ऐड होता है ना. तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होने दो या आउटस्टैंडिंग इनकम होने दो, दोनों को हमको क्या करना रहता है? ऐड करना रहता है. कहाँ पे ऐड करना रहता है? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड या ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड. क्यों क्रेडिट साइड? बिकॉज ये इनकम होता है. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आपको ये चार काफ़ी अच्छे से ध्यान देना है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव इन एडवांस, मतलब ये क्या है? प्रीपेड इनकम. और इनकम रिसीवेबल, ये क्या है? आउटस्टैंडिंग इनकम है. अंडरस्टूड व्हाट आई सेड? लेट्स मूव फॉरवर्ड. बैड डेब्ट्स. बैड डेब्ट्स को ऑलरेडी आप लोग ने 11th स्टैंडर्ड में एक फॉर्मेट पढ़ा था. क्या होता है फॉर्मेट? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में सारे बैड डेब्ट्स आते हैं. दैट इज टू बैड डेब्ट्स एड न्यू बैड डेब्ट्स एट न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी. क्लियर? ये फॉर्मेट होता है. ये फॉर्मेट में हमको जो भी न्यू बैड डेब्ट्स रहता है वो क्या करना रहता है? वहाँ पे ऐड करना रहता है. और वो बैड डेब्ट्स को हमको कहाँ से? सन्ड्री डेटर्स में से माइनस करना रहता है बैलेंस शीट. नेक्स्ट वन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, दैट इज आरडीडी भी इसको बोलते हैं. इसको भी क्या करना रहता है हमको? वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जो मैंने अभी फॉर्मेट बताया, वो फॉर्मेट में हमको ऐड करना रहता है. और उसका दूसरा इफेक्ट हमको सन्ड्री डेटर्स में से माइनस करना रहता है बैलेंस शीट के असेट साइड. रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये क्या होता है? दैट इज यहाँ पे हमको क्या करना रहता है? अगेन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड इसको रिकॉर्ड करना रहता है. और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाता है? दैट इज लेस फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स. ओके, अभी इसका सीक्वेंस, सबसे पहले हमको डेटर्स में से बैड डेब्ट्स ही माइनस करना रहता है. अभी तुमको कोई सम में बैड डेब्ट्स भी दिया रहेगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल भी दिया रहेगा और रिजर्व फॉर डिस्काउंट, तीनों भी दिया रहेगा. पहले तुम क्या माइनस करोगे डेटर्स में से? तो ऑलवेज कीप इन योर माइंड, सबसे पहले बैड डेब्ट्स माइनस होता है. सेकेंड क्या माइनस होता है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. एंड थर्ड क्या माइनस होता है? रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. क्लियर? सो सेम सीक्वेंस क्या करना रहता है? तुमको फॉलो करना रहता है. नेक्स्ट वन इज व्हाट? दैट इज 9th वन, डेप्रिसिएशन. ऑलरेडी पता है डेप्रिसिएशन क्या होता है? एक्सपेंसेस होता है. तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आता है. और उसको क्या, डेप्रिसिएशन किसके ऊपर चार्ज होता है? असेट्स के ऊपर चार्ज होता है. तो उसको हमको क्या करना रहता है? लेस करना रहता है फ्रॉम दैट असेट्स. फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर दिया तो फर्नीचर में से लेस करने का. और उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे दिखाने का? दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ये आपके लिए थोड़ा नया है जो 11th स्टैंडर्ड में नहीं था, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका दो इफेक्ट करना रहता है. तो मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ऑलरेडी आपको बताया था. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पार्टनर्स का बढ़ रहा है. जब
पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ रहा है तो उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना रहता है। तो इसका एक इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स अकाउंट क्रेडिट साइड, और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। अंडरस्टूड वाई इट विल गो इन अ डेबिट साइड, बिकॉज बिजनेस इंटरेस्ट देगा पार्टनर्स को। तो जब बिजनेस इंटरेस्ट देगा पार्टनर्स को तो वो बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है कि नहीं। तो बिजनेस के लिए लॉस है तो वो, और बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो वो कहाँ पे होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और पार्टनर्स के लिए ये क्या है, इनकम है, और इनका कैपिटल बढ़ रहा है तो वो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। सो होप दिस ऑल एडजस्टमेंट यू have learned very well, okay, or this all 10 adjustment is clear in your mind. Let's move forward. Okay, here you can see that is interest on drawing. Okay, next one is interest on drawing. What is interest on drawing? Okay, यहाँ पे क्या होता है, it is same opposite of interest on capital इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ पे जाता है, दैट इज इट विल शो दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाता है। और उसका दूसरा इफेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या होता है, दैट इज पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करना रहता है तो पार्टनर्स का कैपिटल कम हो जाता है। जब पार्टनर्स का कैपिटल कम होता है तो उसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ओके, तो इसका दो इफेक्ट क्या होता है, वन इज रिकॉर्डेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, और दूसरा कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। सेम अपोजिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन। ओके, अभी क्या होता है, इसमें कंपनी ने लोन लिया है तो जब कंपनी लोन लेती है तो उनको इंटरेस्ट पे करना रहता है। तो इंटरेस्ट पे करना रहता है तो उसके लिए कंपनी के लिए लॉस है वो, तो कंपनी कहाँ पे रिकॉर्ड करती है, लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, पहला इफेक्ट। और दूसरा इफेक्ट क्या होता है, दैट इज बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लोन में ऐड करना रहता है। क्लियर व्हाट आई सेड, लोन में इंटरेस्ट ऑन लोन हमको क्या करना रहता है, ऐड करना रहता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, दैट इज 11th वन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होता है, इन्वेस्टमेंट हमारे लिए असेट्स होता है, हमारा मतलब वी आर कंपनी, तो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट क्या होता है, असेट्स होता है। ओके, सो इसका दो इफेक्ट, असेट्स में ऐड करने का, ओके, और उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे दिखाना रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में शो करना रहता है। क्लियर। नेक्स्ट वन, हियर यू कैन सी गुड्स इंश्योर्ड, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, 12th वन, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, और मोस्ट ज़्यादातर एग्जाम्स में ये वाले एडजस्टमेंट रहते हैं। कौन सा, इंश्योर गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। अभी ये इसको स्टार मार्क कर लेना, यही एक ऐसा एडजस्टमेंट होता है जिसमें तुमको 3 अमाउंट्स रहते हैं। कितना अमाउंट्स रहता है, 3 अमाउंट रहता है। एक तो टोटल गुड्स का अमाउंट जो डिस्ट्रॉय हो गया है, दूसरा अमाउंट जो तुमको क्लेम मिलता है, और तीसरा अमाउंट जो तुम्हारा लॉस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा 12,000 का गुड्स था, उसका तुमने इंश्योरेंस लिया। क्लियर, उसमें से 10,000 वो पूरा गुड्स क्या हो गया, लॉस हो गया, मतलब फायर के वजह से डिस्ट्रॉय हो गया। उसमें से तुमको 10,000 का क्लेम मिला क्योंकि वो तुमने इंश्योरेंस लिया था, तो तुमको 10,000 का क्लेम मिला, और जो तुम्हारा 2,000 था वो तुम्हारा लॉस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लॉस होता है। एक तो जो पूरा गुड्स जल जाता है तो दैट हैव टू बी रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। हियर यू कैन सी द ग्रॉस अमाउंट, होल अमाउंट एंड द ग्रॉस अमाउंट वी हैव टू रिकॉर्ड ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। और जो तुमको क्लेम मिलता है, तो क्लेम तुम्हारे लिए इनकम हो गया तो वो, और असेट्स हो गया तो वो तुमको बैलेंस शीट के असेट साइड में रिकॉर्ड करना रहता है। एंड जो तुमको 2,000 का लॉस हुआ है वो लॉस तुमको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना रहता है। वंस अगेन इसके अंदर 3 अमाउंट आता है, एक टोटल गुड्स विच इज़ डिस्ट्रॉय बाय फायर, सेकेंड वन इज़ अ claim amount, and third one is a loss amount. Understood? Let's move forward. Uninsured goods, इसका कोई इंश्योरेंस नहीं होता है तो दोनों लॉस होता है। तो एक लॉस दैट इज ट्रेडिंग के क्रेडिट, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना रहता है। क्लियर। गुड्स स्टोलन, सेम, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सिंपल, अब ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
ट्रेडिंग के क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में रिकॉर्ड करते समय यू हैव टू सी, अगर एडवर्टाइजमेंट दिया रहेगा तो उसको एडवर्टाइजमेंट में ऐड करना रहता है। नेक्स्ट वन, गुड्स विदड्रॉ बाय पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज, मतलब ड्राइंग, अभी हम लोग ने देखा था। तो ड्राइंग को क्या करना रहता है, सबसे पहले तो गुड्स विदड्रॉ बाय पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज़, तो पहले हमको इसको क्या करना रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना रहेगा गुड्स विदड्रॉ, ओके। और दूसरा इफेक्ट इसको हमको ड्राइंग कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। क्लियर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अनरिकॉर्डेड परचेज, सिंपल, वेरी सिंपल। परचेज विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड, तो तुमको रिकॉर्ड करना है, तो परचेज में ऐड करने का और दूसरा क्रेडिटर्स में ऐड करने का। अंडरस्टूड। अनरिकॉर्डेड सेल्स, सेल्स में ऐड करने का और दूसरा डेटर्स में ऐड करने का। क्लियर। नेक्स्ट वन, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिंपल, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसके अंदर इंक्लूड है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो तुमको क्या करना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से उसको क्या करना रहता है, माइनस करना रहता है। तो लेस फ्रॉम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड ऐड टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेम उसका अपोजिट दिया हुआ है 17 का 2। नेक्स्ट 18, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, वेरी इंपॉर्टेंट। बिल रिसीवेबल डिसऑनर ये क्या होता है, दैट इज ऐड टू बिल्स रिसीवेबल, ओके। जो भी बिल्स रिसीवेबल क्या रहेगा उसको क्या करना रहता है तुमको, फर्स्ट इफेक्ट ऐड टू डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, ओके। बिल्स का पैसा हमको मिलने वाला था लेकिन वो नहीं मिला, वो डिसऑनर हो गया, तो क्या होगा, डेटर्स क्या हो जाता है हमारा, बढ़ जाता है, ओके। तो ऐड टू डेटर्स और दूसरा इफेक्ट बिल्स रिसीवेबल में से माइनस करेंगे। सेम उसी के जैसा बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल डिसऑनर, तो इसको भी क्या करना रहता है, ऐड टू सन्ड्री क्रेडिटर एंड लेस फ्रॉम बिल्स पेबल। क्लियर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। डेफर्ड एक्सपेंसेस फॉर एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 5 years, that is not that much important. 21 and 22 again revenue receipt included in a capital receipt, which I already explained in 17(1) and 72. तो same चीज here with example is given. Clear? So I think so this all adjustment is clear to you. Let's move forward. Okay, in the next slide, here you can see hidden adjustment. That is very very important adjustment, which I already explained while explaining the adjustment or what is adjustment. Here you can see hidden adjustment. What is hidden adjustment? That adjustment is not given in a trial balance. What you have to do? You have to find out. Clear? सबसे पहले एडजस्टमेंट दिया है सैलरी रेंट पेड फॉर 10 month. अभी ट्रायल बैलेंस में सिर्फ ऐसे ही लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, सैलरी एंड रेंट पेड फॉर 10 month. ओके, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू दैट इज 2 इफेक्ट. इसका एडजस्टमेंट का तुमको 2 इफेक्ट करना रहता है. ओके, पहला, अभी सैलरी रेंट पेड फॉर 10 month, हमको रेंट 12 month के लिए पे करना रहता है फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन 10 month का ही पे किया, मतलब 2 महीने का सैलरी पे नहीं किया है. तो जब 2 महीने का सैलरी पे नहीं किया है तो वो अनपेड हो गया. अनपेड को और क्या क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. क्लियर. और आप लोग को पता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्या करना रहता है, हमको ऐड टू एक्सपेंसेस और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में. बट यहाँ पे सिर्फ 2 month का ही एक्सपेंसेस हमको ऐड करना रहेगा और 2 month का ही एक्सपेंसेस हमको क्या करना रहता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करना रहता है. नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट हाउ टू कैलकुलेट दैट रेंट. ओके, वो रेंट कैसे कैलकुलेट करने का. तो हियर यू कैन सी 10 month का सैलरी ऑलरेडी गिवन. हमको क्या करना है, हमको 2 month का सैलरी फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए कैसे फाइंड आउट करने का, 2 month सैलरी इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 10. 10 month का सैलरी दिया है, जितने महीने का सैलरी दिया रहेगा दैट विल ऑलवेज गो इन अ डिनोमिनेशन. ओके, जितने मंथ का सैलरी निकालना रहेगा दैट विल कम अंडर द, दैट इज कम अंडर अबाउ द, दैट इज डिनोमिनेशन. ओके, तो हियर यू कैन सी 2 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय कितने महीने का सैलरी दिया है, 10 month का सैलरी दिया, तो मल्टीप्लाई बाय अमाउंट गिवन इन द ट्रायल बैलेंस. ओके, तो यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 10, फॉर एग्जाम्पल 10 month का सैलरी 10,000 दिया है,
तो तुमको 2 महीने का सैलरी कितना आ जाएगा 2000। और सिंपल 10 मंथ का सैलरी 10,000 है तो उसको 10 से डिवाइड करोगे तो 1 मंथ का सैलरी आ जाएगा। तो 1 मंथ का सैलरी 1000 और उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 2 मंथ का सैलरी आ जाएगा। क्लियर व्हाट आई सेड? तो 2 मंथ का सैलरी कितना आया 2000। ओके, सो ये 2000 को हमको ऐड करना रहता है और उसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के कहाँ पे दिखाना रहता है, लायबिलिटी साइड में। नेक्स्ट वन इज इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग 30 जून 2019। तो यहाँ पे मतलब 30 जून तक इंश्योरेंस पे कर दिया, लेकिन कब तक पे करना रहता है हमको, मार्च तक की, मतलब 3 महीने का एक्स्ट्रा इंश्योरेंस पे किया है। तो जब एक्स्ट्रा इंश्योरेंस ज़्यादा पे कर दिया तो उसको क्या बोलते हैं, प्रीपेड। और प्रीपेड सबको पता है क्या करना रहता है, हमको माइनस करना रहता है। किस में से माइनस करना रहता है, दैट इज एक्सपेंसेस में से माइनस करना रहता है और उसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड। अभी यहाँ पे अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है, अभी यहाँ पे तुमको 12 मंथ का इंश्योरेंस दिया, उसमें से 3 मंथ का तुमको इंश्योरेंस क्या करना है, लेस करना है। तो दिस इज द फॉर्मूला, 3 मंथ सैलरी और 3 मंथ इंश्योरेंस इज इक्वल टू 3 मंथ का कैलकुलेट करना है तो 3 क्या रहेगा ऊपर रहेगा और 12 कितने महीने का दिया हुआ है एक्सपेंस वो नीचे रहेगा, मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट गिवन। तो फॉर एग्जांपल टोटल अमाउंट कितना है 2000 है और तुम्हारा सैलरी कितना आया 500, तो 500 क्या रहेगा, वो प्रीपेड रहेगा, उसको तुमको माइनस करना है और उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे दिखाना रहता है, असेट साइड। क्लियर? थर्ड वन इज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, 4 ईयर्स का दिया है और हमको कितना रिकॉर्ड करना रहता है, 1 ईयर का ही। अंडरस्टूड? मतलब 3 ईयर्स का ज़्यादा दिया हुआ है तो ज़्यादा मतलब प्रीपेड अगेन। तो जो 3 ईयर्स का प्रीपेड दिया है उसको हमको क्या करना है, 3 ईयर्स एडवर्टाइजमेंट शुड बी लेस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसका दूसरा इफेक्ट क्या करना रहता है हमको, दैट इज प्रीपेड। प्रीपेड क्या होता है, असेट्स होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के असेट साइड में रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट वन, हियर यू कैन सी रेंट रिसीव, इनकम रिसीव, लेकिन कितने महीने का रिसीव किया है, 11 मंथ, 1 मंथ का इनकम रिसीव करना बाकी है, मतलब दैट इज यू कैन से द आउटस्टैंडिंग इनकम और यू कैन से द इनकम रिसीवेबल। ओके, इनकम रिसीवेबल, तो इनकम रिसीवेबल को ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा, एडजस्टमेंट में क्या करना रहता है, उसको ऐड करना है। रेंट में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में ऐड करेंगे और उसका दूसरा इफेक्ट क्या करेंगे, दैट इज दूसरा इफेक्ट क्या करेंगे, कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट के असेट साइड। क्लियर? 10% लोन, ये भी ऑलरेडी दिया हम लोग ने, ये भी हिडन एडजस्टमेंट, 10% लोन बोरो। तो लोन कहाँ पे होता है आपको पता है, बैलेंस शीट के। हियर सम थिंग इज रॉन्ग, तो हियर यू कैन सी दैट इज द राइट इफेक्ट, शो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। कहाँ पे दिखाना रहता है उसको हमको, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, बिकॉज लोन कहाँ पे होता है, लोन इज अ लायबिलिटी, लोन टेकन, लोन बोरो इज अ लायबिलिटी, तो वो हमेशा कहाँ पे होता है, लायबिलिटी साइड में होता है। तो एक हमको क्या करना रहता है, लायबिलिटी में लोन में ऐड करना रहता है और उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे दिखाना रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। क्लियर? बिकॉज अगर हमने लोन बोरो किया तो हमको लोन पे करना पड़ेगा और वो लोन हमारे लिए लॉस होता है, तो ऑल लॉस, ऑल एक्सपेंसेस इज रिकॉर्डेड अंडर द प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। नेक्स्ट वन, 16% इंटरेस्ट, तो सेम अगेन तुमको क्या करना है, इंटरेस्ट, इसका अपोजिट, इंटरेस्ट हमेशा असेट साइड में होता है, तो उसको हमको क्या करना रहता है, असेट साइड में इंटरेस्ट में ऐड करना रहता है पहला इफेक्ट और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में दिखाना रहता है। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, ये भी क्या होता है, कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, तो दैट ऑल्सो पहला इफेक्ट ऐड टू गवर्नमेंट बॉन्ड विच इज़ गिवन बैलेंस शीट के असेट साइड और दूसरा इफेक्ट क्या होता है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। ओके, तो दैट ऑल इज अ एडजस्टमेंट, दैट ऑल एडजस्टमेंट इज अ हिडन एडजस्टमेंट, जो तुमको ट्रायल बैलेंस के नीचे नहीं दिया हुआ रहता है, वो कहाँ पे दिया हुआ रहता है, दैट इज गिवन ऑलवेज इन अ ट्रायल बैलेंस। ओके, इन अ ब्रैकेट you have to find out and you have to do the posting, and every hidden adjustment should also have a two posting, that is one is debit side and another is a credit side. Okay, so hope you all understand this all adjustment, like we have discussed total 22 adjustment and 7 hidden adjustment. Okay, so that all adjustment you have to again by heart,
तुमको क्या करना है, ये सारे एडजस्टमेंट को लर्न करना है और बायहार्ट करना है, तभी तुम क्या कर पाओगे। इसके बेस के ऊपर, इसी के बेस के ऊपर सम्स है, वो सम्स आगे हम कर पाएंगे। क्लियर? तो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट सम्स विच इज़ बेस्ड ऑन introduction of partnership final account. Okay, so in my next lecture I will start sums of partnership final account. So before starting the sums, before starting the practical sums, I want that what you have to learn, तुमको क्या क्या learn करना है, you have to learn all three account, that is trading, profit and loss, balance sheet and partners capital account. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ईच एंड एवरी डिटेल मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, देन ओनली यू कैन कम टू नो हाउ टू प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्लियर? आई विल पुट दैट प्रीवियस वीडियो लेक्चर यूट्यूब लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन. Clear what I said? So hope you like my lecture. If you wanted to connect it with me, okay, so I give you trust that I will bring new video lectures to understand the 12th standard bookkeeping concept in a very well. Please stay connected with me. If you like my lecture, subscribe my channel, okay, then only you will come to know the notification. Press the bell icon also, so with the help of that, if I will upload any new video, so that automatically you will get the notification. Thank you for watching. Stay safe, stay healthy.